Hi friends, hope everybody is doing good and keeping safe. So आपने जैसा thumbnail में देखा होगा, आज जो comparison है वो है actually the big brother, that is the original Thar and with Thar Rocks. So आप लोगों को सबको पता है कि जो महिंद्रा का जो थार का पूरा अभी एक मार्केट में डिमांड जो बना है, that was always because of this vehicle. So this is the vehicle which has led way for the Thar Rocks as a 5-door Thar, because of which it has got such a good hold in the market. अगर ये गाड़ी ने उस टाइम पे प्रूव नहीं किया रहता और ये गाड़ी फेल हुई होती, so ये गाड़ी कभी आती ही नहीं. So today the comparison is not basically कि कौन सी गाड़ी अच्छी है. There are a lot of videos on YouTube जिसमें लोग कंपेयर करते हैं कि ये अच्छी है, वो अच्छी है. मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस. एक चीज सबको समझना चाहिए कि सारे ओनर्स के लिए उनकी जो गाड़ी होती है वो सबसे अच्छी होती है. आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ माई व्हीकल. सिमिलरली जिन सर ने ये गाड़ी खरीदी है उनकी, दे आर अ प्राउड ओनर ऑफ दिस व्हीकल एंड दे विल ऑलवेज लव दिस. सो दिस इज नॉट अ कंपैरिजन कि कौन सी अच्छी है खराब है. दिस इज बेसिकली अ रिव्यू ऑफ बोथ द व्हीकल्स, अ कंपैरिजन कि क्या है क्या नहीं है, एंड एन ऑनेस्ट रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू फ्रॉम the owner of the 3-door Thar. So now I will invite Imran sir, who has been really kind कि उन्होंने अपने 3-door Thar का मैं रिव्यू करने के लिए अलाउ किया है. Sir, welcome and thank you so much. I'm very good. Thank you so much. आपने एक सैटरडे को मतलब टाइम निकाला है and you have given us this opportunity. So sir, few questions before we start off with the comparison of the cars. So आपने ये गाड़ी अभी, for how many years you've been driving this? It's almost 1.5 year, or it's like one of the best car you can have. Okay, awesome. According to me, because I am the owner, as you mentioned before. Absolutely. Like every owner like their cars. And that is how it should be also. Exactly. Because आप जो गाड़ी खरीदते हैं बहुत प्यार से खरीदते हैं. So that love has to be there. मतलब गाड़ी इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कि अब्यूज करना गाड़ी को. गाड़ी इसलिए खरीदनी चाहिए कि गाड़ी से प्यार है. Yeah, exactly. So जब आप खरीद रहे थे, were there any other vehicles in your mind जैसे Creta या Seltos, because they all in the same range. So आपने वो गाड़ियाँ कभी consider? Not really. Actually, I already have other vehicle cars with me, Creta, and also I have Climber, and okay. So I'm into cars. I like buying cars. So this was like we know that this vehicle is coming, right? And the buzz was Absolutely. There everywhere. Absolutely. It was like everyone wants to buy car. Absolutely. And they have 6 months or 1 year waiting period even. Correct. So we were lucky. So we went me and my wife, we went to the showroom. And immediately we do the booking, and after 1 month it got delivered. And awesome. 1 month. Yes. मतलब थार ऐसी गाड़ी थी जो इतना वेटिंग पीरियड कमांड कर रही थी, उसमें अगर आपको 1 मंथ पे मिल गया, that is exactly really, that's why I said I am lucky. Very lucky, very lucky. 3 साल पहले I had almost gone and booked the 3-door Thar. और मेरा रीजन ये था 3-door Thar नहीं बुक करने का, because I go out with my parents and उनको 3-door में चढ़ने के लिए काफी मुश्किल होता, बिकॉज ऑब्वियसली पीछे डोर नहीं है. और उसी टाइम ऐसा हुआ था कि 5-door का पहला व्लॉग निकला था कि 5-door टेस्टिंग स्टार्टेड, एंड हम लोग शोरूम जाते जाते रुक गए कि ये सोच के कि गाड़ी के लिए वेट करते हैं, और वो वेट इतना लंबा हो गया कि 3 साल तक वेट किया. बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज हियर, एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट कि ये गाड़ी अगर महिंद्रा ने आज बनाई है और अपग्रेड किए हैं थोड़ी छोटी मोटी चीजें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल सक्सेस. So this is the big brother for me, and this is the younger sister of the Thar. With the inherited properties and additional property. Correct. वो भाई से features बहन को भी आए हुए हैं. So it is exactly like that. So सर आपका अभी तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज में देखा है, लोग बोलते हैं कि 3-door में लॉन्ग ड्राइव नहीं जा सकते हैं, हाईवे में मतलब बहुत बॉडी रोल होता है, कंफर्टेबल नहीं है. आपके कुछ एक्सपीरियंस? You are an owner. See, first thing I will start with, like you mentioned, you want 5-door and your parents, and so this guy is not for families. Right. If you want this guy, you should keep another car for it. Right. But yeah, this car you can go with family. And as far as my driving experience, it's very comfortable. You will see, if you are going in a higher end vehicle, which is having so much power, and the height is more, there will be little correct there, but Absolutely. It's not like you will have some sort of discomfort or something. I went to even this is 4x4, so I went for off-roadings also, and I went for city drive also, but it's very comfortable. Absolutely. So देखिए, see this is what happens when an actual owner जिन्होंने 1.5 year से गाड़ी चलाई है,
वो अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो बहुत अलग होता है उन यूट्यूबर्स से जो थोड़े टाइम के लिए गाड़ी को चलाते हैं और बोलते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। सी एक्चुअल ओनर विल लव देयर कार। उन्होंने काफी रिसर्च किया रहता है गाड़ी खरीदने से पहले, और वो उनको पता रहता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या है, विच इज व्हाट इज बी देयर, एंड दे नो कि मतलब ठीक है ये सब रहेगा एंड वी हैव टू स्टिल टैकल, बट दे स्टिल लव द व्हीकल, एंड दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट सर कि आप यू रियली लाइक योर व्हीकल No, एंड यू नो no, दैट्स व्हाट इट शुड बी। I love it actually. और जैसे आपने कहा था कि यू नो दिस इज द नॉट द फैमिली बॉय, सो दिस इज नॉट द फैमिली बॉय, तभी ये लड़की आई है बिकॉज यू नो गर्ल्स आर मोर फैमिली ओरिएंटेड। Yeah. So that is what He's Thar a has done. rebel, right? He's a He rebel. changed the industry, so that's why. Absolutely. Thank you so much, sir, for coming No problem. and giving your valuable inputs about the drive. Now, मेरे को आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप please do drive the Thar Rocks and give your honest feedback. आप क्योंकि ये गाड़ी काफी चला चुके हैं, तो आप जब ये चलाएंगे तो आप बताइए आपको क्या फर्क लगता है, you know, Right, is there right, something that has actually improved, या it is the Yeah. same package but थोड़ी लंबी कर दी है, Yeah, you know, yeah, सीट yeah. चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। सो आप क्योंकि एक ओनर रह चुके हैं, दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस। सो थैंक यू सो मच। Thank you. More spacious. If I will tell you honestly, it looked like more spacious. You know, nice steering, laying off with so many buttons, bigger console. It's really looked nice, and you have control here for the glasses for windows. While in my Thar, you will have all the controls here Correct. for the windows. And this looks, I mean, spacious. Looks better. And this has now got this The panoramic sunroof also, Yeah, ये भी दे panoramic दिया है। sunroof also. Yep. I चलिए, don't have let's- that. Yeah. चलिए let's go for the drive then। Yes. So here I notice a difference. We have 360 camera, while in my Thar there is no 360 view. So it's an additional feature for brother Arun, and it's nice. Ooh. As soon as you sit in the Thar vehicle, your adrenaline got bump, you know, and you feel like you're driving a really bad toy. Though I have a older version of Thar, but yeah, I mean Thar Rocks is better. You have a nicely laid out dashboard. Driving experience is also comfortable, and yeah, the Thar steering is very smooth. If you compare to older Thar versions, it's very smooth. If you compare to my version of Thar, it is more smoother. The steering is good. The suspension is really nice. Yeah, Mahindra did a really good job. I mean, Thar is their old-time vehicle, but the way they upgraded this, you know, new vehicles, and I know this Thar is a game changer for Mahindra. So you will see so many Thars, you know, all around me, and one is coming from the front, and I think, you know, people just love Thar. बहुत ऊपर बैठे, you will feel like you are sitting in a truck or something. So I got a chance to drive Ford F120 in US. That was, you know, a kind of feeling you can match with. That, you know, that big vehicle, you are having the same feeling sitting in this car in India, and that too, you know, if you compare to price, the price tag is very hefty for those vehicles. So yeah, for Indian you know, drivers, or for Indian car lovers, you can say that yeah, this is the car. Go for it, guys. So we were talking about the steering and driving experience and things like that. So what I feel is, you know, if you are sitting in this car Rocks, you are having a smooth steering, and the seating console is good. But if you sit in the older version of the Thar, you will feel more roughness, you know, or masculine kind of, you know, feeling. See, Thar, as I mentioned in my earlier statement, it's not a family vehicle. The older one, so it's designed for, you know, go for fun and off-roading and that kind of. So you can feel that this is the car which is designed for adventure, and going for, you know, on the rough roads. So yeah, I mean, The bad boy. for the bad boys. Yes, exactly. Thank you so much. सो आफ्टर इमरान भाई ने थार रॉक्स की टेस्टिंग की, इट वाज माय टर्न कि अब मैं 3 डोर थार टेस्ट करूं। इमीडिएट जो था जो दिखता है वो ऑब्वियसली एक डोर मिसिंग है और पीछे बूट स्पेस जो कम है, लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट ड्राइव।
सो गाइज मैं अभी इमरान भाई की गाड़ी में एक टेस्ट ले रहा हूँ. टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग अ 3-door थार. मैं इससे पहले कभी चलाई नहीं है. आई वॉज अ बिग 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 फैन ऑफ द 3-door थार. मेरा प्राइमरी रीजन 5-door खरीदने का ही था क्योंकि आई लव द 3-door थार. पहला इंप्रेशन, यस स्टेयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इट इज नॉट कि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे बहुत ह्यूज डिफरेंस है. मेरे को ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं है. You know, once the vehicle starts moving, it becomes really comfortable and easy. So power wise, very excellent delivery of power. मतलब मैंने ये छोटे से स्ट्रेच में एकदम से एक्सेलरेट किया and the vehicle just flew literally. And सीटिंग बहुत ही अच्छी है. गड्ढे हैं, मतलब ये वाला तो अच्छा गड्ढा जिसमें काफी तेजी से मैं अंदर गया हूँ. एंड आई फाइंड इट अमेजिंग. लाइक मेरे को जो एक ही डिफरेंस अभी तक ज्यादा लगा है वो है स्टीयरिंग. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कर दिया तो इसलिए स्टीयरिंग थोड़ा स्मूथ है. एंड 2 डोर और जो सीटिंग और बूट ऐड किया है, बाकी तो इट इज रियली नाइस. मतलब जो इमरान भाई ने बोला है कि वो 1.5 years में उन्होंने लॉन्ग ड्राइव एंजॉय की है, आई कैन रियली रिलेट टू दैट. क्योंकि ये गाड़ी तो इन गड्ढे वाले रोडों में, इतने बम्प्स वाले रोडों में इतनी स्मूथ चल रही है. उसके साथ अगर आपको एक पैकेज मिल रहा है 4x4 मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया और 4x4 का पैकेज, तो अभी ये थोड़ा गड्ढा है. ये आप देख सकते हो, काफी अनइवन सरफेस है. बहुत ही ज्यादा अनइवन सरफेस था. कोई बॉडी रोल नहीं लगा. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा ऐसा कोई बॉडी रोल हुआ है. ये जो है ये तो रोड ही नहीं है. हम लोग तो प्रॉपर मतलब गड्ढों के अंदर से जा रहे हैं, प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जिसके लिए ये गाड़ी बनी है. जहाँ पे सड़कें नहीं है वहां पे थार है. थार डजंट लाइक tar, which exactly is the right statement. And beautiful. मतलब मेरे को तो मजा आया एक्चुअली. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग. एंड आई रियली एंजॉयड इट. एंड दिस ड्राइव इज रियली डिफरेंट. मतलब मैं पहली बार चला रहा हूँ 3-door, और मेरे दिमाग में तो लोगों ने जो यूट्यूब में तो डाला हुआ था कि वो तो ऐसा था कि थार रॉक्स और थार में जमीन आसमान का फर्क, ऐसा कुछ नहीं है. इफ पीपल फील कि थार रॉक्स ड्राइव अमेजिंग, दिस ड्राइव इक्वली अमेजिंग. और सस्पेंशंस, बॉडी रोल इज ऑल एग्जैक्टली द सेम कंट्रोल. महिंद्रा हैज मेड 2 ब्यूटीफुल व्हीकल्स and really thumbs up to Mahindra for what they have done with these vehicles. only thing missing is ADAS is not there. लेकिन ADAS is not something that I mean day to day in use के लिए होता right. नहीं है. Exactly, Exactly. it's needed for, but yeah. और ADAS in fact the disadvantage of having ADAS in city, जैसे मैंने अपना ADAS बंद रखा हुआ है. मैं सिटी में कभी ऑन ही नहीं करता हूँ उसे. द रीजन बीइंग कि आपका जो ब्रेक पैड है वो बहुत जल्दी घिस जाता है. Exactly. क्योंकि हमारा जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसमें जो ADAS है, आप भी ब्रेक दबा रहे हैं, गाड़ी भी ब्रेक दबा रही है, इट विल वेयर आउट योर ब्रेक पैड वेरी फास्ट. सो माई एडवाइस टू एवरीबडी इज हैवी टर्न इट ऑफ. आप हाईवे में जब भी कभी जाते हैं तब ऑन कीजिए कि मतलब जो बाकी के फीचर्स है यूज कर सकते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट या ये जो क्रूज है विच इज अडेप्टेबल क्रूज कंट्रोल, उस सब के लिए यूज कीजिए. लेकिन सिटी में तो ऑफ रखिए. सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आफ्टर द टेस्ट ड्राइव ऑफ बोथ द व्हीकल्स थोड़े से फीचर कंपैरिजन किए. सो थार रॉक्स में बेसिकली और 3-door थार में, जैसे 3-door थार में आपको की से स्टार्ट करना होता है, उसमें पुश बटन स्टार्ट है. इसमें आपको ऑटो हेडलाइट्स और ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते हैं. पोर्टेबल चार्जिंग नहीं है यहाँ पे. आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं. यू डोंट हैव द टच स्क्रीन ऑल्सो इज़ अ लिटिल बिट स्मॉलर. But then the biggest advantage this has got is definitely the 4x4 in a petrol automatic, जो Thar Rocks में नहीं है, and which is a big miss. इसके साथ ही Thar Rocks में आता है panoramic sunroof. In this you get the hardtop, which is actually detachable, so you can make it a convertible. The biggest disadvantage obviously जो है 3-door में वो था rear door. Now coming to the Thar Rocks, इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है जैसे हमने बताया. उसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स हैं, आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है. द टच स्क्रीन इज ऑब्वियसली बिट मोर बिगर, पैनोरामिक सनरूफ. नाउ कमिंग to the plus point for a family, which is the back door with a grab handle. और ये आपके फैमिली में जो एल्डरली हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सो
जो फैमिली ओरिएंटेड है उन लोगों के लिए दिस इज़ बेटर, बट थार ऑब्वियसली यू नो आप जैसे देख सकते हैं कि आपको अगर बाहर निकलना है सो यू नीड टू पुश द सीट, दिस इज़ मोर फॉर अ यंगर जनरेशन एंड यंग कपल। इसके बाद हमने कुछ एक्सेसरीज चेकआउट किए जो इमरान भाई ने अपनी कार में लगाए हैं। उन्होंने ये डोर पे साइड स्टेपर लगाया है विच वॉज क्वाइट स्टर्डी। उन्होंने ऊपर रूफ पे हमर टाइप स्लाइड भी लगाए हुए हैं। ये स्लाइड्स उन्होंने टर्न ऑन किए थे विच वर लुकिंग नाइस, बट लेकिन कैमरा में दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज वी वर शूटिंग इन डे लाइट। उन्होंने हेडलाइट्स भी चेंज किए हैं विच वर नाउ DRLs। गाड़ी के नीचे एक ब्लू लाइट है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज अगेन इट वॉज डे लाइट। एंड फिर हमने इंटीरियर चेकआउट किया। इसके अंदर उन्होंने हैंडरेस्ट और कप होल्डर्स लगाए हैं विच लुक वेरी प्रीमियम एंड वेरी पॉश। मेरे को बहुत अच्छे लगे थे ये। एक्चुअली अगर मैंने 3 डोर खरीदे थे डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन एंड गॉटन दीज डन। इसके बाद हमने दोनों कार्स के फोटोज थोड़े से शूट किए एंड आई होप एवरीबडी लाइक दिस व्लॉग ऑफ द कंपैरिजन फ्रॉम एन ओनर्स पर्सपेक्टिव। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो वापस घर आ गया हूँ। काफ़ी टायरिंग डे था। आई होप आप लोगों ने जो मेरा व्लॉग देखा है कंपैरिजन बिटवीन द रॉक्स एंड 3 डोर थार आप लोगों को अच्छा लगा। एंड आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट छोड़िए, फीडबैक छोड़िए। यू नो ये सब कुछ नया है मेरे लिए, तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत वैल्यूबल हैं। आप बता सकते हैं इसे और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो प्लीज़ डू and I'm always appreciative of any feedback and comment that you leave for me. So thank you so much again, and all of you take care. Bye bye.